So, hello and welcome to Level Up IAS. Today is a very happy day because Upinder Singh ma'am has released the new edition, the second edition of her most famous book, that is the history of ancient and early medieval India. It is ओरिजिनल बुक जो हुई थी रिलीज 2008 में हुई थी. आई हैव दैट कॉपी विथ मी ओवर हियर. इसको हमने आज तक कम से कम 20 से 25 बार पढ़ा हुआ होगा एंड इट हैज़ बीन अ वेरी गुड कंपेनियन ओवर लास्ट मोर देन 1 डिकेड. इस किताब में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं बट ये किताब लिख के अब 15 साल हो गए थे एंड पियर्सन वाज पब्लिशिंग इट्स रीप्रिंट्स अगेन एंड अगेन. नई एडिशन अब जाके आई है 2024 में एंड दिस इज द न्यू एडिशन एंड इसमें लगभग 100-125 पन्ने बढ़ गए हैं एंड लॉट्स ऑफ चेंजेस आर देयर. तो आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है, आई वांट टू कंपेयर द टू बुक्स एंड टेल यू व्हाट इज न्यू इन दिस न्यू बुक. तो पहली बात तो फॉर दोज हु हैव नॉट यूज्ड दिस बुक इन द पास्ट, I strongly recommend get one copy. This is one of the most authentic books you will find on the history of ancient and early medieval India. Standard book है, authentic है. There are very few errors. है कुछ है but very few errors compared to other books. And it is used by students and teachers alike. यूपीएससी ने तो एग्जाम में आज तक इस किताब से इतने सवाल पूछे हैं पिछले 15 साल में, क्या बताऊँ आपको. Every single chapter you will find at least 1 or 2 questions coming over last 15 years. This book is very important. Why is it important? And how to use it for our exam? I'll talk about both of them also along with what is new in this book. पहले तो मैं पुरानी किताब के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं. There are a few points जो मुझे आपके साथ साझा करने हैं. I want to share them with you. Why this is a unique book and why I prefer this book a lot. Why this book is good for. I am not saying it is good for general studies, not for GS. I am talking only from the point of view of history optional. ये समझो. GS I do not recommend. It is too much and the yield will be very less. But for optional, I am saying it is a very good book for certain reasons. पहली बात तो this book gives you a very comprehensive coverage of the entire syllabus from the very beginning of humankind till the end of early medieval India. तो इतना comprehensive and complete coverage आपको कहीं और मिलता नहीं है. That is one. The second thing is that the objective of the author here is very praiseworthy. वो चाहती है कि अब तक इतिहासकार तो बहुत हो गए. Historians have written many history books which are quite good also, and there is other stream called archaeologists and they also write their own books. But अब समय आ गया है दोनों को merge करने का. The literary sources and the sources from archaeology need to be put together. इसमें ये कोई नई बात अपने आप में नहीं है. But if you read old books, you come to know कि either literature or archaeology is given primacy and the second category of sources are used as supportive in nature. जैसे रुमिला थापड़ मैम की किताब जो है अर्ली इंडिया, उसमें you will see कि she has written the history of early India beautifully, but the archaeological sources get supportive in nature and so are many other authors. तो उपिंदर सिंह की पूरी कोशिश ये रही है कि दोनों को इक्वल वेटेज देके कैसे काम हो एंड इट इज़ अ वेरी प्रेजवर्दी मेथड. दूसरी बात इसमें है कि इस किताब में आपको फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों मिलेंगे. देयर आर सम गाइड बुक्स जिसमें फैक्ट्स भरे होते हैं एंड देयर आर सम वेरी हाई लेवल बुक्स जिसमें कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस होता है. बट एक किताब में एक साथ दोनों पुरजोर मिलना इज वेरी रेयर फॉर एंशिएंट इंडिया. So why concepts? Because lots of theories from sociology, from anthropology, from other sources of disciplines are used here, based on which we study the sources. तो आपको conceptual clarity and भरपूर factual data you will find that in one single book at the same time. चौथी बात इसमें यह है, which I personally liked, is that she has given a due weightage to intellectual history, to religion and philosophy, to social history, to marginalized social groups and even to aesthetics. अब तक पहले क्या होता था? You have lots of political stories. Then in the Marxist era, we have a lot of focus on economy and society. But in both of these cases, religion, literature, philosophy, aesthetics, culture, इनको एक end में chapter के 2-4 पन्नों में समेट के बताते थे. She has not done that. She has given due weightage to philosophical, aesthetic, intellectual developments also. And इस किताब की बहुत बड़ी ताकत है वो. The next point which is good about this book is that this book is not boring at all. It's beautifully written, free of jargon, lots of photos. Photos are also a very strong point of this book. यहाँ पे
In the first edition, around 350 images are used. In the new edition, around 500-550 images are used. I have seen one speech of Upinder Singh ma'am in which she said that जब पहली किताब उन्होंने लिखी, उनके colleagues उन पे हंस पड़े because they considered a book with the photos is not serious enough. It is not a good book. ये बच्चों की किताब है. बट उपिंदर सिंह मैम ने उस भ्रम को, वहम को तोड़ के रखा है. पिछले 15 साल में किताब जितनी चली है, देश के कोने कोने बच्चे इसको पढ़ते हैं. And photos have become indispensable for writing a good book of history because visualization के बिना अगर आप इतिहास लिखो and you want all of them to, all the readers to imagine the things, it is not possible. और कुछ कुछ चीजें बिना विजुअल्स के पॉसिबल हो ही नहीं सकती. द एग्जाम्पल विच इज माई फेवरेट वन इज BRW स्टडी इन द प्री हिस्ट्री. We have black on red ware, BRW pottery, and we have black and red ware. That is also a kind of BRW pottery. जब मैं 2 बार black on red ware, black and red ware कहूँ, तो how can you visualize the difference unless until you see the photos? तो photos have been very important. That is a good point of this book. Now आखिरी 2 चीजें इस किताब में, अपार्ट फ्रॉम एनालिसिस, एक इक्वल फोकस दिया गया है टू इंट्रोड्यूस टू द रीडर द प्राइमरी सोर्सेस. हर एरा के प्राइमरी सोर्सेस के कुछ एक्सर्प्ट्स, कुछ पैराग्राफ, कुछ फोटोज, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ट्रांसलेशंस दे के, इफ यू रीड दिस बुक थरली, यू गेट एक्सपोज टू एमिनेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोर्सेस थ्रू आउट द हिस्टोरिकल एरा टू विच द बुक बिलोंग्स. और उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत गहरी और बहुत तगड़ी हो जाती. यू ऑल्सो कम टू नो द क्राफ्ट ऑफ हिस्टोरियन, द फ्रेज दैट इज यूज्ड बाय मार्क ब्लॉक, क्राफ्ट ऑफ हिस्टोरियन. हिस्टोरियन का क्राफ्ट क्या होता है कि यूजिंग द सोर्सेस यू ट्राई टू इंटरप्रेट हिस्ट्री. बिकॉज नाउ देयर इज, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है. कुछ हिस्टोरियंस पहले करते थे, दे वुड फोकस लेस ऑन द सोर्सेस एंड मोर ऑन एनालिसिस, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको ओपिनियन में इसी तरह शेप करो. इनका वो पर्सपेक्टिव है ही नहीं. हर पर्सपेक्टिव इज टू गिव द फैक्ट्स, गिव द प्राइमरी सोर्सेस एंड ट्राई टू टेल अस हाउ वी ट्राई टू ब्रिंग आउट द मीनिंग इंटरप्रिटेड. तो आपका जो स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग जो होता है, क्रिटिकल माइंडसेट, ओपनिंग अप ऑफ योर डिबेट एंड डिस्कशन, दैट बिकम्स वेरी मच पॉसिबल व्हेन यू हैव 2 things, प्राइमरी सोर्सेज के साथ एक्सपोजर, एंड सेकेंडली हाउ द ओपिनियन इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्सेज. इंटरप्रिटेटिव मेथड जो है वो बढ़िया थी. सो ये 7-8 पॉइंट्स हैं जिसके वजह से आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ दिस बुक फॉर लास्ट 15 ईयर्स. बट रीप्रिंट्स के ऊपर रीप्रिंट्स आते गए. मैंने कम से कम 3 बार किताबें खरीदी है. मेरी सेकंड बुक है, यू कैन सी इट वेरी वेल. इस पे इतना लिख के मैंने रखा है, इतने पेजेस सब जगह भर गई है किताब ये. बट अब नई किताब आई है तो इसको मैं 2-3 दिन से देख रहा था. आई वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट. तो अब मैं इस किताब के बारे में थोड़ा बताऊं इसमें क्या नया है. पहली बात तो एज आई सेड, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट is exceedingly well, and we have to congratulate and thank both Upinder Singh ma'am and also the publication that is the Pearson. बहुत अच्छा काम किया. अब दूसरी बात इसमें है कि इसमें फोटोज जो है, विजुअल्स जो है, वो 350 से लेके 500-550 हो गए हैं. तो दे हैव एडेड अ लॉट ऑफ डेटा एंड दे हैव चेंज सम डिजाइन एलिमेंट्स, बट दैट इज नॉट अवर कंसर्न. 15 साल में क्या ऐसे बदला जिससे नई किताब लिखने की जरूरत पड़ी? तो उसमें 2 चीजें. पहली बात ये कि हिस्ट्री इज नेवर अ स्टैटिक फील्ड. इन हिस्ट्री यू कैन नेवर हैव अ लास्ट वर्ड. हिस्ट्री इज ऑलवेज एन इंटरिम रिपोर्ट एंड नेवर अ फाइनल वर्जन. तो 15 साल में बहुतों ने बहुत रिसर्च किया है, नई नई चीजें सामने आई है. सो उपिंदर सिंह हैज ट्राइड टू इनकलकेट दोज, इंक्लूड दोज इनटू दिस. And she has said that she has specially tried to include the works of the younger academicians, जिनकी उम्र 30, 35, 40, 50 साल है, या उससे भी जो यंग है, 20-30 साल के हो, जिनका कुछ नया नया रिसर्च खुल के आ रहा है. बिकॉज दीज आर द फ्यूचर लाइन्स. आज से लेके अगले 10-15 साल तक की किताब इंपॉर्टेंट रहने वाली है. इसमें सारी लेटेस्ट चीजें. दूसरी बात, द पर्सन ऑल्सो चेंजेस. Upinder Singh ma'am herself, because of her 15 years of intervening experience, have evolved, have become more matured. Her ideas have changed. Her concepts have become little different. Her interests have shifted. तो वो भी इसमें reflect हो गया है. So history as a field and Upinder Singh ma'am as author, both these things have changed to some extent in the intervening 50 years, and that was what necessitated the new book. बहुत ही अच्छी किताब है. इसमें जब मैंने पहली बार किताब देखी, आई वॉज लिटिल बिट
I'll be very honest, थोड़ा सा मैं नाराज हो गया, इसमें कुछ नया दिखाई नहीं दिया मुझे क्लियरली. आई इवन पुट अ पोस्ट इन माई टेलीग्राम चैनल कि नई किताब आई है, ज़्यादा चेंज है नहीं, हार्डली 5-7% चेंजेस है, तो यू डोंट नीड टू बाय द न्यू बुक, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अब मैं जब किताब को, आई हैव नॉट रेड इट कवर टू कवर येट, बट जितना हो सके उतना मैंने पढ़ लिया टू फाइंड आउट व्हाट आर न्यू थिंग्स. तो अब मुझे लग रहा है कि द चेंजेस आर ओके. सो फोटोज बढ़ गए हैं एंड सम टेक्स्ट ऐड हो गया है, कुछ फोटोज टेक्स्ट घट भी गया है कुछ कुछ जगह. लेकिन सम ऑफ द चेंजेस, नॉट ऑल, सम ऑफ द चेंजेस आर वेरी सब्सटैंटिव इन नेचर. तो दो चीजें हैं. एक तो यहाँ पे हर पैराग्राफ में, हर पेज में एक दो शब्द, दो चार लाइंस ऊपर नीचे है, तो वो तो चेंज हुए ही. We can't go into those and cover line by line and find out कि भाई इसमें क्या change. Like first chapter itself, in the old book when she introduced geography of India, वो एकदम 2 पैराग्राफ में शुरू किया था. But in the new book, she has she has started with the Raghavamsham of Kalidas, and उसमें किस तरह description है, and then she comes to present geography and historical geography के साथ connect करती है. तो it is a beautifully written chapter, the first chapter itself. तो कुछ कुछ चीजें पैराग्राफ के अंदर भी इवॉल्व हुई है. कुछ कुछ जगह शी हैज ट्राइड टू चेंज द वे शी प्रेजेंटेड द नरेटिव. तो वो चेंज एक तरफ है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एक दूसरा बेसिक इंपॉर्टेंट चेंज है, वो है न्यू इंफॉर्मेशन बॉक्सेस. वी नो कि किताब की खासियत यही है कि इसमें कई सारे बक्से होते हैं, एंड इन दोस बॉक्सेस यू गेट टू सी प्राइमरी सोर्सेस, रिसेंट डिस्कवरीज एंड अदर डिबेट्स एटसेट्रा, एंड दे आर ब्यूटीफुल. तो व्हेन आई कंपेयर्ड द टू बुक्स, आई फाउंड कि लगभग 50 न्यू बॉक्सेस आर एडेड इन दिस बुक. इट्स अ ह्यूज नंबर. When you go through the pages very quickly, इतना अपीयर नहीं होता है, बट when you go page by page, लगभग 50 बॉक्सेस नए ऐड हुए, 3-4 बॉक्सेस हटा दिए गए हैं. That is also very true. कुछ figures and 3 or 4 boxes are removed and almost 15 new boxes are added. तो मैंने एक काम किया है. I have prepared a PDF of 2-3 pages, the link of which you will find in the description box and in our Telegram channel, जिसमें I have listed all the new boxes and sections also in some chapters which are newly added. I have also highlighted those sections or boxes which are now removed from the new book. तो पुराने में से 2-3 सेक्शन, 3-4 बॉक्सेस हटाए गए हैं, और 5-6 सेक्शंस और 50 बॉक्सेस ऐड किए गए हैं. उसकी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बना के मैंने अपलोड कर दी है. यू प्लीज गो थ्रू द PDF, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर क्विक रेफरेंस. बट आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दोज बॉक्सेस हियर. उन बॉक्सेस के थ्रू जब आप जाते हो, एंड बाकी किताब के थ्रू भी वंस यू गो थ्रू, आपको क्या प्रतीत होता है, व्हाट डू यू थिंक इज डिफरेंट, हाउ द आइडियाज हैव इवॉल्व्ड, हाउ हिस्टोरिकल नैरेटिव इज चेंजिंग एंड इवॉल्विंग. That is what I want to point out in this video, and that is the main thing. सबसे पहली बात, look at the archaeological research. She has tried to include, the first point, she has tried to include the latest scientific research in archaeology. जैसे कि कई सारे साइट रिपोर्ट्स हैं, उसमें कुछ कुछ नए एडिशंस तो हुए हैं. I am less concerned about that for history optional. What I am more interested in, that she has also now added sections on genetic data, how genes or genetic study is useful in analysis of the migration patterns or the ancestry of people and communities. तो वो सेक्शन इसमें ऐड हुआ है, बिकॉज पिछले 2009 में, 2010 में, 14 में, 19 में लॉट्स ऑफ रिसर्च केम ऑन आर्यंस एंड हड़प्पन्स, एंड जेनेटिक स्टडी हैज बिकम नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी. तो उसने वो इंक्लूड किया. दैट इज वन फर्स्ट पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट यू सी इज द वेरी आइडिया ऑफ द फॉरेस्ट एंड द ट्राइब्स. पहले किताब में भी यू सी इन सम चैप्टर लाइक मौर्यंस एटसेट्रा, द ट्राइबल एस्पेक्ट वाज प्रेजेंट, कि हाउ द मौर्यन स्टेट सॉ द फॉरेस्ट स्टेट. कुछ कुछ चीजें हैं जो यहाँ वहाँ स्कैटर्ड है. बट इन दिस न्यू बुक शी हैज एडेड कपल ऑफ सेक्शंस एंड शी हैज मेड इट अबंडेंटली क्लियर कि उसका व्यू पॉइंट क्या है. Her friend and also a very eminent historian, Nyanjot Lahiri, also recently published a paper on tribes in Bandhavgarh in Madhya Pradesh. तो उनका ट्राइबल हिस्ट्री एंड फॉरेस्ट आर्कियोलॉजी एंड लैंडस्केप एंड एनवायरनमेंट का एक नया फील्ड अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंट हुए जा रहा है. एंड उपेंद्र सिंह मैम का सिंपल मानना ये है कि इन द एंटायर एंशिएंट इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री द ट्राइब्स आर द मोस्ट अंडर एम्फसाइज्ड एंड निग्लेक्टेड कैरेक्टर्स. उनका भी अहम योगदान रहा है, बट हमने उनको आज तक ठीक से देखा नहीं है. एंड शी हैज ट्राइड टू improve that. So that is the second point why this book is good. The third point
is the history of regions. And that is also interesting. You know, she has tried to additionally give emphasis on, for example, Kashmir ki history. You see in many reports, many sections, Kashmir के नए sites add हुए हैं, and especially history of Northeast India, Nagaland हो और other Meghalaya etc. Those parts are also included. Northeast India के history को include करना has now become a very important trend in many latest book. In last 3-4 years, I have seen at least half a dozen books have come on Indian history, or either ancient or modern, and they try to now mainstream the history of Northeast also, which had been a very neglected part. And in the National Curriculum Framework 2020 that also is emphasized again, and अब जो नई एनसीईआरटी बनेंगी उसमें भी नॉर्थ ईस्ट को इंक्लूड किया जाएगा, अच्छे से किया जाएगा. So this is also attempted over here. Regional history, Kashmir and Northeast, but that is not where she stops. जो मेरा हमेशा क्लास में ग्राउस रहा है बच्चों से वो ये है कि when we study the pre-modern India, either medieval or ancient or prehistoric, उसमें we should not superimpose today's political boundaries. They don't make any sense. The most famous example I give is the Mughal history. Delhi and Agra are important, no doubt, for Mughals, but so is Lahore. Lahore was very important cultural capital of Mughal Empire, but because today it comes across the border, we don't give it enough importance. हम तो when we study Mughal architecture, हम दिल्ली आगरा के architecture ज़्यादा देखते हैं, लाहौर के नहीं देखते, जो गलत बात है. Today's political history, political boundaries should not be imposed backwards to study history. And Upinder Singh ma'am has done that fabulously. उन्होंने, she is writing the history. यहाँ पे लिखा India है, but it's a history of India in the pre-modern era. And India in the pre-modern era was Indian subcontinent altogether. तो history of Nepal, Sikkim, Bangladesh, Pakistan, and especially 2-3 बक्से तो ऐसे हैं which talk about the history of Sri Lanka. Not only the landscape of Sri Lanka, but Sri Lankan Buddhism and stupas in Sri Lanka are also given very much due space in this book. So, regional history is the third point, not only of Kashmir and Northeast, but entire Indian subcontinent. So, एक बात आती है वहां से निकल के, that thing is called as the connected history. Connected history, which is another version, a kind of a version for us of global history. संजय सुब्रमण्यम इज अ हिस्टोरियन जिनकी बात होती है इस नाम से, ही हैज गॉट वेरी मच अवार्ड्स फॉर दिस. तो उस अप्रोच को, ग्लोबल हिस्ट्री अप्रोच, कनेक्टेड हिस्ट्री अप्रोच को यहाँ पे कोशिश की है इंटीग्रेट करने की. ये नई हिस्टोरियोग्राफी है, ओल्ड बुक्स में इतना ज्यादा प्रतीत नहीं होता जो इसमें हो रहा है. सो इन द सेम पॉइंट अगर मैं चौथा मुद्दा लेके आऊं, वो है ग्लोबल हिस्ट्री. यहाँ पे the history is not only of regions in Indian subcontinent, but of entire Indian Ocean trade network, Asia, Africa, Europe, Southeast Asia, everything is so interconnected. The attempt by Upinder Singh ma'am is to bring out that interconnection and global history, connected history into this. And that is also done very fabulously. उसके ऊपर खास करके फोकस दिया गया. For example, we have an island in Socotra, Hawk Caves. तो होक केव्स का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, विच इज नॉट प्रेजेंट इन द ओल्ड बुक एट ऑल. नए में उसका अलग से बक्सा जोड़ा गया है. इफ यू गो टू इंडियन ओशन ट्रेड इटसेल्फ, दैट ऑल्सो, पांचवा मुद्दा अगर मैं कहूं तो इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. Archaeologically, many sites in Africa, in Indian Ocean, Southeast Asia have come out in last 10-15 years, जो ये दर्शाती है कि इंडिया का ट्रेड कितना एक्सटेंसिव था एंड इंडियन ट्रेडर्स कितने बाहर जाके ट्रेड करते थे. They have left huge impact, economic, socio-cultural, everything. So that also is not included. And ये vice versa भी होता था. India's eastern coast, western coast used to welcome lots of traders from outside. So especially in the early medieval, she has given focus on the interconnection and multicultural aspect of society on the western coast. वो भी इसमें अच्छे से शामिल किया गया. तो ये एक मुद्दा. Then the next point is the intellectual history. She gives enough and adequate focus on intellectual history. इसमें आपको दो चीजें बताऊं मैं. After the first edition and before the first edition, she published one book a few years ago, Political Violence in Ancient India. इतना बड़ा किताब है, मोटा सा, बड़ा अच्छा किताब है. You see the ideas that she developed in that book, Political Violence in Ancient India, are also now included here. It was a part of intellectual history. If you go to the chapter of Vedas, in Vedic chapter, she has added a section of science and mathematics in Vedic era. So she has given adequate focus on intellectual history also. वो पहले भी था, अब भी है, अब वो ज्यादा एक्सटेंसिव हो गया है.
It's not a new feature, but it's a more expensive feature. Then you go to the seventh thing. सातवीं बात यह है कि विजुअल सोर्सेस. बाकी सारी किताबों में आपको पता ही चलेगा, दिखाई देगा कि स्कल्पचर और पेंटिंग आर इंपॉर्टेंट थिंग्स. समटाइम्स दे आर गिवन 1 or 2 पेजेस इन एवरी चैप्टर, बट वो आते हैं चैप्टर के अंत में, एज इफ दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी. Upinder Singh doesn't agree with that. She has a chapter on sculpture painting at the end of every era. वो अलग है. But independent of that, she tries to use the visual sources as source of history. Not only archaeology and literature and text, but also the sculpture and painting. वहाँ से इतिहास क्या मालूम होता है, and how that helps us to upgrade our understanding of society, polity, economy. वो उन्होंने बहुत अच्छा किया है. And rather, if you see in the first chapter itself, she has added a section there, subsection there, visual sources of finding out history. Next point is that chapter 7. This is a very important point. Chapter 7 is a chapter on Mauryan Empire. अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे, तो इस चैप्टर में from 324 BCE to 187 BCE, she has done a lot of rewriting of this chapter. ये चैप्टर लगभग आधे से आधे बराबर नया लिखा हुआ है. इसमें कंटेंट नया नहीं है पूरा, बट द पॉइंट दैट हैपेंड इज दैट जो मेजर सोर्स है मौर्यन एरा का, जो हम मानते हैं, वो है कौटिल्यन अर्थशास्त्र. इन द ओल्ड बुक शी हैज रिटन अ डिबेट इन द बॉक्स कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू डेट अर्थशास्त्र, एंड सम सेक्शंस ऑफ अर्थशास्त्र बिलोंग टू मौर्यन एरा एंड सम अदर सेक्शंस बिलोंग टू द पोस्ट मौर्यन एरा. बट अभी बीच में कई रिसर्च हो चुके हैं, एंड नाउ देयर इज अ काइंड ऑफ एकेडमिक कंसेंसस दैट द मेजॉरिटी सेक्शन, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ अर्थशास्त्र बिलोंग टू द पोस्ट मौर्यन एरा. तो इसलिए उसको इसलिए शी हैज रिमूव्ड दैट चैप्टर, दैट सेक्शन फ्रॉम मौर्यन एरा एंड पुट इट इनटू पोस्ट मौर्यन एरा. तो इट इज स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, बट हिस्ट्री ऑफ द पोस्ट मौर्यन एरा. So for the Mauryan era, when you talk of Mauryan state, its structure, its nature, she has given scant references to Arthashastra now. तो भाई हमें इतिहास लिखने के लिए फिर सोर्सेस क्या बचे? We have Ashokan edicts, we have Megasthenes, and some references in some cases to Ashokan, to Kautilyan Arthashastra. तो इसलिए उनके चैप्टर को दोबारा लगभग लिखना, उस सेक्शंस को दोबारा लगभग लिखना पड़ा है. So that is what is there. उसके बाद जो पॉइंट मुझे बताना है वो है पॉइंट नंबर 9, वो है चैप्टर 8. चैप्टर 8 इज ऑफ द पोस्ट मौर्यन एरा इटसेल्फ. यहाँ पे देयर यू विल सी लॉट ऑफ रीजिग इज हैपनिंग, स्पेशली फॉर 2 रीजंस. एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, शी हैज गिवन अ लॉट ऑफ फोकस ऑन द न्यूली इमर्जिंग डेटा ऑफ इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क. सोकोट्रा एक बात हो गई. In Berenike, we have found a Buddha and Balaram की मूर्ति, which was a very important Roman port in Mediterranean, Egypt में, and it had Indian communities there. तो ये सारे नई चीजें बाहर आती है. But apart from that, she has now also given some focus, some good amount of focus on the political history of North India. When India is opened for invasion, we have Shakas, Kushanas, and पार्थियंस एंड इंडो ग्रीक्स, ये 4 जो लोग आते हैं, देयर सीक्वेंस, वहाँ पे थोड़ा क्लटरिंग होता है. हु इज हुज कंटेम्पररी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन रुक रहा है, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड. इट इज अ क्लटर्ड थिंग. सो शी हैज ट्राइड टू इलैबोरेट दैट अ लॉट एंड गिव इट एंड डीक्लटर इट फॉर यू. तो उसमें कॉइन की हिस्ट्री हो या नए सोर्सेस हो, वो एरिया जो है, द पोस्ट मौर्यन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिव फील्ड ऑफ स्टडी, एंड 15 साल में उसमें बहुत कुछ नई चीजें आई है. तो दैट सेक्शन इज क्वाइट रिफर्बिश्ड. देन यू गो टू लास्ट चैप्टर नंबर 10, द अर्ली medieval era. In that chapter you will see she has added a lot of history of Islam, history of early mosques in Sindh and in Kashmir, and also ultimately how it led to the formation of Delhi Sultanate. वहाँ तक कहानी के रुक जाती है. So she has also included that. पहले वाले किताब में वो था, but it was very less. बाकी इसमें apart from that, ये जो 9-10 पॉइंट हो गए, इसके अलावा you will be able to download the entire list, as I said, of the boxes which are new in this book and sections which are new from the Telegram channel. लिंक नीचे दी गई होगी. But I still want to walk you through to some sections, जैसे कि the box on the
chronology of Ramayana is now removed from the sources वाला chapter. Then एक दो चीजें इंटरेस्टिंग लगी मुझे, जैसे कि she wants you to know the founding fathers of Indian archaeology. So there is a section on letters written by Alexander Cunningham to his friend JDM Begler कि ये जो he was the first DG of ASI, उनकी दिक्कतें क्या रही है, वो अच्छे से लिखा हुआ है. एंड उसके ठीक बगल वाले पन्ने पे वी हैव अनदर सेक्शन कंप्लीट पेज भर के ऑफ HD सांकलिया, हु वाज द ग्रेट ग्रैंडफादर आफ्टर इंडिपेंडेंस एरा ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी. देन कुछ सेक्शंस, कुछ टर्मिनोलॉजी भी चेंज हो गई है, जैसे कि समटाइम्स जहाँ पे लिटरेरी होता था वहाँ पे टेक्सचुअल शब्द आ चुका है, बट दीज आर माइनर थिंग्स. सनौली में नई जानकारी आ चुकी है, या फिर इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस 2009 में एक नया इंस्क्रिप्शन मिला था. So in the old book, the list of Ashokan edicts is not complete. We have found a new edict of Ashoka at new place in Bihar only. 2009 में उसको भी इसमें शामिल किया गया है. तो there are some boxes which are still old boxes, but they contain some new information, some nuggets of information. But ऐसी बहुत चीजें मिलेगी आपको. Example है लहुरा देवा. लहुरा देवा was very important site in UP, जो पिछले 10 साल में ही ऊपर आई है. तो उसने उसके ऊपर पूरा एक बक्सा दिया हुआ है. Then one section was a good section actually, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा. A good section on diffusionist theories, उसको उन्होंने हटा दिया है. It was there in chapter number 4. I don't know why this part was removed. But otherwise, it's a fantastic book. अगर आपके पास पुरानी किताब है, तो I would stay कि भाई you continue with the old book from the exam viewpoint. इतना फर्क नहीं पड़ने वाला. I'll be very honest with you. Because UPSC का जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, उसमें एक आध क्वेश्चन शायद कभी आ जाए, इतने लेटेस्ट चीजें नहीं होती. दैट हैज बीन अवर ट्रेडिशनल विजडम. बट द पॉइंट इज दैट दिस भूपिंदर सिंह बुक हैज बीन अ बुक दैट इज फॉलोड बाय ऑल द फैकल्टीज एंड टीचर्स अक्रॉस इंडिया. तो अगर इस साल नहीं तो अगले साल, तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू गो फॉर द न्यू बुक. अगर आप 24 के लिए तैयारी कर रहे हो, आपने पुरानी किताब पढ़ ली है, अंडरलाइन करके रखा है, देन यू डोंट गो फॉर द न्यू बुक. देयर इज नो पॉइंट. स्टिल इफ यू वांट टू हैव अ रेडी रेफरेंस, तो यू हैव द लिस्ट ओवर हियर. ये किताब के बारे में आई नीड टू टेल यू 1 or 2 मोर पॉइंट्स. हाउ टू अप्रोच दिस बुक. पहली बात तो समझो कि जब बच्चे पहली बार किताब उठाते हैं ना, समझते नहीं. इट इज नॉट एन ईजी बुक टू डू, ऑल्दो शी क्लेम्स ऑलवेज दैट शी वांट्स टू मेक द बुक by keeping in mind the readership of both students and lay people. जो कि कॉमन इंसान है, इंटरेस्टेड हिस्ट्री में है, उसके लिए किताब काम की हो, इंटरेस्टिंग हो, उसने कोशिश पुरजोर की है. बट द पॉइंट इज दैट दिस बुक इज स्टिल डिफिकल्ट. अगर नहीं सिर्फ आपने NCERT पढ़ के आ गए, इट विल बी डिफिकल्ट. इट हैज लॉट ऑफ फैक्ट्स, इट हैज लॉट ऑफ साइट रिपोर्ट जो अपने एग्जाम के काम के बिल्कुल नहीं है. And she has a language which is a language of an archaeologist more and historian थोड़ा सा less. तो polemics में she doesn't engage herself, which is a ethical thing to do. She engages herself more in description. But हमारे जो आंसर राइटिंग के तरीके हैं, उसमें we need to have a rounded analysis of the argumentation. तो उसके लिए आपको इसमें चीजें मिलेंगी, but थोड़ी कम मिलेंगी. तो my suggestion has always been first, this will not be your first book and not the will be your primary book. You will have one basic book, either NCERT और आप किसी क्लास के नोट्स लेके जाइए, या फिर you do some foundation course somewhere, go through it completely. एक आपका फाउंडेशन मटेरियल एंड एक राउंड कंप्लीट होने के बाद you come to this book, and you come to this book also after reading UPSC PYQs. जब PYQs बार बार पढ़ोगे, then you know what to look for. फिर आप इसके अंदर खो नहीं जाओगे. वैसे खोने को आनंद तो बड़ा आएगा, बट एग्जाम को फायदा नहीं है. तो माय पॉइंट इज दैट फिनिश योर वर्क ऑफ एंशिएंट इंडिया, गो थ्रू PYQs वंस एंड देन ओपन द बुक एंड रीड इट सिलेक्टिवली. वी डोंट नीड साइट रिपोर्ट्स, जरूरत नहीं है. वी डोंट नीड टू हैव सो मेनी फैक्ट्स इन आवर आंसर्स. वी कैन राइट ओनली 1 or 2 फैक्ट्स फॉर वन आर्ग्यूमेंट. तो यू हैव टू यूज दिस बुक एज अ रेफरेंस बुक. इट कैनॉट बी रेड कवर टू कवर. यू कैनॉट मेमोराइज इट. रट्टा फिक्शन के लिए किताब है नहीं, और ना ही जरूरत है, ना ही कर सकते. It is to be used as first important reference book, not as the primary book. And as a reference book, it is a fantastic book. इसको आपके पास जरूर होनी चाहिए, and it will take your quality of answers to next level. जब हम क्लास में भी एंशिएंट इंडिया पढ़ाते हैं, we make sure कि इस किताब का रेफरेंस अच्छे से कवर किया जाए. Anyway, so
as and when we come across many new things, I'll keep telling you. Chalo, thank you.